Assalamualaikum everyone. Today I am back with yet another video. Today we'll be doing February March 2021 February March 2021 A levels paper 1. So let's get started. And the first question says the table shows the number of protons, neutrons, and kindly wait for a minute. Alright, so it shows the number of protons, neutrons, electrons in 4 different particles, Y and Z. ठीक हो गया. Which pair represents the atoms of 2 isotopes of the same element. Now what is an isotope? You need to memorize the definition. It means atoms of the same elements having the same number of protons but different number of neutrons. So same number of protons are over here and different number of neutrons are over here. So X and Y. It was very simple. No, wait. Of the same element. Atoms भी बताने हैं. तो इसमें आयन हो गया और एटम नहीं रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है. सो it can be these two or these two. Now we have to figure out कि कौन सा है. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों में डिफरेंट है, इन दोनों में सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. अब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेट्स सी. तो ये दोनों सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो W एंड Y. सो दिस इज़ द आंसर. क्योंकि एटम था, वरना अगर आयन लिखा होता तो फिर ये वाला होना तो फिर नहीं, फिर भी कोई नहीं हो सकता था. ये अगर आयन होता तो फिर ये वाला हो सकता था, X and Y. But since it is atoms, so it is A. Let's move on to the next question. It says, where in the periodic table is the element that has an outer electron shell arrangement of 4s2 4p3? Group 3 or period 3? I don't have the periodic table right now, so I'm going to skip this question because it seems pretty easy too. तो सिर्फ यही बताना है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में है. तो लेट्स सी. आई कैन ओनली टेल यू राइट नाउ कि किस तरह आपने करना होता है. सो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 and 4f14, I guess, but you never need this. I'm just telling you. So it's S, B, T, D and F total suborbitals, and 5s2 5p6 5d10 and 5f. Alright, so how you fill these up is, first 1s2 is filled, then 2s2 is filled, then 2p6, and then 3s2, then 3p6, and not 3d10. 4s2 will be filled first, then 3d10 afterwards, after 4s2 is filled. So 3d10, then 4p6, and then not 4d10, what will be filled? 5s2. And again over here it is 4d10 and not 4f, instead 5p6 would be filled. So this is how it goes, and I hope you understood the trend, and I'm sure you can do it like that. Alright, let's move on to the next question. It says substance Q is a hydrocarbon. ठीक हो गया. When 1 gram of Q is completely burned, मतलब oxidation combustion हो रही है, 3
2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। साइक्लो हमने बताना कि कौन सा क्या है क्यों, ठीक है। इसके साथ देख लो साइक्लोहेक्सीन कैसे बनेगा। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। इधर एक एल्कीन लगा दो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं। इधर दोनों दो कार्बन, दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगेंगे इंस्टेड ऑफ दीज टू, जिस पे एक लगेगा, ठीक है। बिकॉज टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए कार्बन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लेट्स कैलकुलेट C6 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 plus O2 CO2 plus H2O. Alright, so let's balance it. So 6 carbons, 10, 5 2s are 10 and 6 2s are 12, 13 14 15 16 17, so 17 by 2. Alright, so when 1 gram, this is 1 gram, let's calculate the moles. So the MR would be moles is equal to mass over 12 into 6. 12 is the MR of carbon and 1 is the mass for hydrogen, so plus 10. The total is 1 over 82 and 1 over 82 is the moles, which is 0.012. Alright, 3.22. Now let's take the ratio of the hydrocarbon and carbon dioxide, because these are the masses that are given. So 1:6 is the molar ratio and is the ratio which is required as said in the equation. तो इधर x कर दिया। अब हम ये बता रहे हैं कि एक रिएक्शन में इतने मोल्स डालो तो कितने मोल्स बनेंगे। So x is equal to 6 multiplied by 0.012, which is 0.073. अब इन मोल्स को मोल्स इज इक्वल टू मास निकालना है, x ओवर mr। इसकी कितनी बनेगी 44 होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मोल्स ये हैं, तो 0.073 इंटू 44 करो तो 3.22 ही आता है। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि 3.22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Alright, so now over here what it says is, organically chemists thought indium oxide had the formula INO. Alright, by experiment they showed that 4.8 grams of indium combined with 1 gram of oxygen to produce this much of indium oxide. The air of oxygen was known to be 16, we know that, ठीक है। What was the value of AR of indium is calculated using these data. चलो ठीक है, अब हम ये भी मोल टाइप ही क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट started with the equation first, which is In plus O2 becomes INO, and this is half to balance it. Now 4.8 gram, this is 4.8 gram, this is 1 gram, this is 5.8 gram, ठीक है। अब इसमें से जो है, अगर ये 1:1 मोलर रेशो है, लेट्स सी, अगर हम उल्टा स्टार्ट करें तो
it says which value for the air of indium is calculated using these data. तो अगर मोल्स निकाल लो, पहले इसके मोल्स, अच्छा रुको, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. 38 है अगर, तो मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एमआर करो, तो पहले इंडियम के मोल्स निकाल लो, तो मोल्स इज इक्वल टू मास 4.8 ओवर 38. सो द आंसर इज 0.13. इधर देख लो कि 1:1 रेशो आ रही है, तो इधर भी 0.13 मोल्स ही बनने चाहिए. तो 5.8 ओवर टोटल एम आर विच इज़ 38 + 16, तो ये 0.107 बन रही है. दिस इज़ नॉट 1:1 रेशो, तो ये मतलब नहीं है. अब आगे चलो 77 पे 4.8 ओवर 77 करो, तो क्या बनता है 0.062. अब 5.8 ओवर 77 + 16 करें हम, तो 0.062 ही आता है. सो दिस इज़ द आंसर, बिकॉज सेम रेशो, इधर सेम रेशो है तो इधर भी सेम रेशो होनी चाहिए. तो B is the answer. Let's move on to the next question. In which substances are the only intermolecular forces temporary dipole induced dipole attractions? ठीक है. HCl में कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, मेथनॉल में OH है क्योंकि अल्कोहल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्टेन में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ऑक्टेन में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर. वाटर में H2O है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं क्योंकि O और H इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है. सो इधर कोवलेंट हो गया, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, इधर जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं विच इज़ सिमिलर क्योंकि टेम्परेरी डायपोल होती हैं, सेम वैन डर वाल्स फोर्सेस या टेम्परेरी डायपोल. तो C is the answer. A solution contains 0.25 grams of sulfur dioxide in 1 dm cube of water. तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई 0.25 ग्राम पर dm cube, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन वैसे दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है. इससे हम मोल पर dm cube में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. व्हाट वॉल्यूम of sulfur dioxide measured at 50 Celsius and pressure must be added to 1 dm cube of water to produce the solution. क्या पूछ रहे हैं वो? So basically what they are asking is कि हमें PV is equal to nRT I think यूज़ करना है, जिसमें प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, मोल्स भी गिवन है in a way. I'll explain. R भी गिवन है और T भी गिवन है, ठीक है. अब the main problem is मोल्स तो नहीं गिवन, आप लोग कहेंगे, ठीक है. I agree नहीं गिवन, but we can calculate. कैसे? We are going to calculate it. So let's fill out the other substitutions first. Pressure is 1 × 10⁵ into volume into n into 8.31 into 50 plus 273 because that is how you convert it into Kelvin scale, into 323. ठीक हो गया. n निकालना है, अब n निकाल लेते हैं. So basically the first line in it says 0.25 gram of sulfur dioxide in 1 dm cube of water. What does this mean? मतलब 0.25 grams per dm cube डालो तो वो सोल्यूशन बन जाएगा. अब इस सोल्यूशन को हमने मोल पर dm cube में कन्वर्ट करना है ताकि 1 मोल आ जाए,
क्योंकि वॉल्यूम कितना है 1 dm³, ठीक है। नाउ इधर चलो तो 0.25 grams in 1 dm³, मोल्स कितने होंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर व्हाट, एम आर सल्फर डाइऑक्साइड की 32 + 32 है, क्योंकि 32 एक सल्फर की और 16 एक ऑक्सीजन की और 2 ऑक्सीजन हैं, तो 64 आंसर है, ठीक है। तो 0.25 over 64 is 3.9 into 10⁻³ So these are the moles, and now let's calculate. इधर n की जगह ये 3.9 into 10⁻³ पुट करके देखो तो what do we get? 3.9 into 3.9 into 10⁻³ into क्या है आगे 8.31 into 323, 8.31 into 323 over क्या था 1 into 10⁵. So it is ये है या ये है, क्योंकि 1.04 into 10⁻⁵ आ रहा है, तो इट इज़ इधर B और D. यहाँ तक आई एम श्योर समझ आ गया, अगर नहीं आया तो आई कैन रिपीट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अच्छा ये dm³ में निकला है, ऑलराइट। सो 1 मीटर इज़ 10 डेसीमीटर एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर क्यूब इज़ 10⁻³ dm³ एंड 100 into 10⁻³. So basically 100 क्या का क्यूब इज़ 1 into 10⁻⁶, और ये तो 10⁻³ ही रहेगा। अच्छा, अब 1 मीटर हमारे पास, अच्छा ये हमने मीटर क्यूब में निकाला है, क्या निकाला था 1.04 into 10⁻⁴, 1.04 into 10⁻⁴ को अब हमने cm³ में कन्वर्ट करना है, तो इधर x लगा दिया, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू 10⁻⁶ करेंगे तो आंसर आता है, मैंने क्या किया है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, रुको, 1.04 into 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ किया तो 104 आ गया, ठीक है। एंड 104 एंड 105 ऐसे आ जाए, क्योंकि 1.046 था, तो उसे राउंड ऑफ करके 105 आ गया, ठीक है। तो D is the answer. Now let's move on to the next question, which says an experiment was performed to determine the enthalpy combustion of ethanol, ठीक है। अब हमने which expression can be used to calculate the enthalpy change, अच्छा mc delta theta लगेगा, Q is equal to mc delta theta. मैथ्स हमेशा वो यूज़ करते हैं जो मास ऑफ वाटर हो, हमेशा, चाहे जो मर्जी बर्न हो रहा हो, हमने वो यूज़ करना है जो मास ऑफ वाटर है। तो W और हीट कैपेसिटी भी हमने वाटर की ही यूज़ करनी है, 4.2 इंटू टेम्परेचर राइज, दिस वन, ठीक है, mc डेल्टा थीटा। और यहाँ पे मुझे याद आया, क्योंकि हमने केल्विन में लेना होता है, तो दिस शुड बी +273, ऑल राइट। x हो गया, नहीं सॉरी y हो गया,
Now what we'll do is over 1000 कर देंगे बिकॉज वो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय क्योंकि वो किलो जूल में और अभी हम ये सब कुछ जूल में निकाल रहे थे, तो ओवर 1000 करेंगे तो किलो जूल में निकलेगा. नाउ आगे वो कह रहे हैं पर मोल भी निकालना है. अब बारी आएगी एथेनॉल की. ठीक है, तो इधर देख लेते हैं कि क्या सीन हो रहा है. ठीक है, मोल पर मोल निकालना है, तो दिस इज़ फॉर हाउ मेनी मोल्स ये निकाल लेते हैं. मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर. तो मैस ये है, एम आर ये है, तो एक्स ओवर जी हो गया. ठीक है, इतना निकल रहा है इतने मोल्स में, तो एक मोल में कितना निकलेगा, एक्स हो गया इधर, मतलब ये दूसरे वाला एक्स है, वेरिएबल एक्स. तो z, तो यहाँ तो रुको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ सही से. इधर ये सब कुछ लिखा है. ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़. ठीक है, तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे x से, सो फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट ओवर हियर. तो x मल्टीप्लाइड बाय x ओवर z इज इक्वल टू, कहाँ लिखूँ, इंटू v इंटू 4.2 y प्लस 273. ठीक है, ओवर 1000. अब हमने ये वाला x निकालना है, तो ये वाला, तो दिस विल बी रेसिप्रोकेटेड, मतलब ये z इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा wz ओवर x. तो इधर देख लो, w इधर y भी आ रहा है, wyz ओवर x ये हो सकता है, wy नहीं, w, तो ये आंसर है बिकॉज ओवर x नीचे आ रहा है. माइनस हर जगह है, तो मतलब हमें नहीं पता कि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, सो दिस डजंट मैटर. और प्लस 273 आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं किया, बट मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स कि वो आप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या नहीं. ठीक है, मतलब ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो. ऑल राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड these 7 questions, and if you have any questions do let me know in the comment section, or I'll be back with another class tomorrow जिसमें I'll be doing the next questions जितने मर्जी 20 minutes में हो जाए. All right, so that's it for today, and please like, comment and subscribe if you really liked it, and if you want to watch more videos. Thank you, bye bye.